السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم فقہنا فی الدین. اللہم فقہنا فی الدین. اللہم فقہنا فی الدین. رب زدنی علما. رب زدنی علما. رب زدنی علما. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. آمين اللهم ثم آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولی. آمین اللہم ثم آمین. ہمارا ایڈوانس کورس چل رہا ہے تجوید القرآن، تو اس میں اللہ کی وجہ سے ہم نے الجوف والخشجوم کر لیا، تجوید وغیرہ کا سارا مہارج کی اقسام پڑھ لی، مہارج کا بیان پڑھ لیا. اب ہم نے مہارج کو جو ہے وہ ڈیٹیل میں جاننا شروع کیا، جس میں سے الجوف والخشجوم پڑھ لیے. آج ہم مہارج محققہ اسٹارٹ کریں گے انشاءاللہ، جن میں حلق کے مہرج لسان کی اور شفتین کے آتے ہیں. سب سے پہلے حلق، الحلق کا اسٹارٹ کرتے ہیں. الحلق جیسے میں نے بتایا تھا گلے کو کہتے ہیں. الحلق سے 3 مقامات سے آواز آتی ہے، یعنی جو ہمارا گلا ہے، جو تھروٹ ہے، وہاں سے 3 ایسی سب ڈویژنز کی گئی ہیں جن میں سے حروف ادا ہوتے ہیں. الحلق، یہ اس کی ڈیفینیشن لکھ لیں. الحلق یہ سینے سے قریب اور منہ سے دور والا حصہ ہے. یعنی جو الحلق ہے وہ سینے سے قریب ہے، آپ بے شک اس کو ہاتھ لگا کے چیک کر سکتی ہیں، اور منہ سے دور والا حصہ ہے. یعنی منہ سے جو ہمارا گلا ہے نا، ٹوٹل جو گلا پورا ہے، اس کی جو سب ڈویژنز کی گئی ہیں ان میں جو حلق آتا ہے نا، وہ سب سے لاسٹ جو سینے کا حصہ ہے اس کے قریب اور منہ سے دور والا حصہ ہے. یہاں سے 2 حروف، یعنی جو سب ڈویژنز کی گئی ہیں حلق سے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ٹوٹل اس کے 3 مہرج ہیں جن میں سے 6 آوازیں نکلتی ہیں. تو وہ والے انشاءاللہ اب ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے. حلق سے جو الحلق ہے وہاں سے یہ سینے سے قریب اور منہ سے دور والا حصہ، یہاں سے 2 حروف حمزہ ہا ادا ہوتے ہیں. ہا وہ جو گول ہوتی ہے 0 والی شکل، اور جو 2 اس کو درمیان میں پڑا ہوتا ہے آنکھوں والی ہا جسے ہم بولتے ہیں اردو پڑھتے وقت، وہ. اچھا، حمزہ جو ہے نا، جو حروف تحجی میں ہوتا ہے حمزہ، وہ بھاری والا حمزہ یہاں سے ادا ہوگا. اور حمزہ میں آواز ہماری بھاری ہوگی، باریک نہیں. جو حمزہ ہوتا ہے وہ حمزہ نہیں جس کے اوپر زبر زیر ہوتی ہے، وہ الف والا نہیں. یہ حمزہ جو دوسرا ہے، ہا میم زا ہا کو ملانے سے جو حمزہ آتا ہے نا، جو 2 بار ہا ہا ملائے تو وہ حمزہ آتا ہے، وہ والا حمزہ یہاں سے ادا ہوگا الحلق سے. یعنی آپ کو علم ہو گیا کہ الحلق جو ہے وہ سینے سے قریب اور منہ سے دور والا حصہ ہے. یہاں سے 2 حروف حمزہ اور ہا دونوں ہی بھاری ہیں، ان دونوں کو بھاری آواز کر کے نکالنا ہے. باریک جیسے حمزہ ہا ایسے نہیں، یہ غلط ہو جائے گا. یہ لحن یعنی غلطی میں شمار ہوگا، تو اس کا پھر آپ کو ثواب نہیں، الٹا گناہ ملنے کا خدشہ ہوتا ہے. اور اس کو یاد کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ حمزہ کیسے، مطلب آپ یاد کریں گی ہا کے ادا کرنے کی نشانی. اور حمزہ جو ہا ہے نا، جو حروف ترجیع میں لاسٹ میں ہا آتا ہے بھاری والا، وہ جب ادا کریں گے تو ہمارا سانس پھول جائے گا. معذرت. اچھا، ہمارا سانس پھول جائے گا ہا کو ادا کرتے وقت، ہمارا گلا خشک ہو جائے گا. دیکھیں ابھی مجھے کھانسی آ رہی ہے کیونکہ گلا خشک ہو جاتا ہے جب اس کو نا تجوید رول کے ساتھ آپ پڑھتے ہیں.
मैं आपको प्रोनाउंस करके बताती हूँ। आम जैसे पढ़ते हैं ना, पहले मैं वैसे पढ़ती हूँ जैसे हम आम पढ़ते हैं बगैर तजवीद के। हा, हमजा, हा, हमजा, हा, ऐसे करते हैं। लेकिन जब हम तजवीद के रूल के साथ पढ़ेंगे, यानी हमें पता होगा कि ये बारीक लफ्ज़ है, ये मोटा है, इसको बारीक पढ़ना है, इसको पूर पढ़ना है, पूर यानी मोटा पढ़ना है, तो फिर हम ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा बेहतर तरीके से कुरान की तिलावत कर सकते हैं। तो मैं आपको प्रोनाउंस करके बताती हूँ तजवीद रूल के साथ। हा, हा, हमजा, हमजा। देखिए, आप जब इसको करेंगे आपका सांस फूलेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप हा और हमजा अदा करें और आपका सांस ना फूले। इसका आप ये कर सकते हैं कि जब आप हा हा और हमजा अदा करने लगे ना, तो आपकी जो ब्यूटी बोन्स है ना, उन उन पे ना आपने करना क्या है, अपना हाथ रख लेने, ठीक है। जब आप अपना हाथ रखेंगे ना उस पर, फिर जब आप अदा करेंगे ना, आपको इल्म हो जाएगा कि जो है वो इसका आपका सांस फूलेगा। यानी जब आपका सांस फूल गया ना, यानी आपको लगा कि भाई अब तो मेरा सांस फूल रहा है, तो फिर आपका इसका मतलब है आपका हा, यानी भारी वाला हा, और हमजा अदा हो गया, यानी अदायगी उसकी आपसे हो गई। अदरवाइज आपने बहुत सारी इसकी प्रैक्टिस करनी, क्योंकि ये ऐसे दो अल्फाज हैं जो नहीं अदा होते। हा, हमजा, हमजा, हा, हमजा। आवाज़ में फ़र्क देख सकती हैं कि जो आम रूटीन में हम पढ़ते हैं और जो तजवीद के साथ पढ़ते हैं उसमें कितना डिफरेंस आ रहा है। तो मैंने हा की अदा करने की आपको तरीका बता दिया, और ये मैं आपको आपको बताती हूँ कि ये जो हा है ये अदा कहाँ से होगा। ये अलहल्क है, अलहल्क से जो उसके आगे सब डिवीजन है वो मैं आपको बताने लगी हूँ। हा जो गोल ता वाली भी अक्सर होती है ना, हा जो वो वाली, हाँ, हलक के लास्ट वाले हिस्से से अदा होता है, यानी जो हमारा गला है ना। हाँ, आप उसको जब ब्यूटी बॉन्स पे अपनी उंगलियां रखेंगी ना, अपना हाथ रखेंगी, आपको वाज़े पता चलेगा, आपको इल्म होगा कि वाकई में आपका जो हाँ है ना, वो गले के लास्ट से, जो सीने के करीब वाला हिस्सा है ना हमारे गले का, जहाँ पे हमारी ब्यूटी बोन्स जो है वो जो अटैच होनी, वहां से अदा होता है। बेशक आप अपनी उंगली अभी रखें, ठीक है, आप उसको अपने गले पर रखें, जो थ्रॉट है, जो हलक है, फिर आप हा अदा करें, फिर आपको आवाज़ उसकी आएगी बाकायदा, आपको फ़ील होगा। कैसे, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। हा, हा, हमज़ा, हमज़ा। आपको बाकायदा वाइब्रेशन महसूस होगी अपने गले में, वो भी किस, कौन से वाले हिस्से में, लास्ट वाले हिस्से में। तो ये आपका अदा करने की निशानियों का आपको याद रहेगा कि आपने हा कैसे अदा करना है तजवीद के साथ। हा हलक के लास्ट वाले हिस्से से अदा होता है। इसकी साउंड हैवी फील होगी, यानी जैसे मैं आपको पढ़ रही हूँ ना, ये भारी वाला हा होगा। हा, हा नहीं करना, हा ऐसे नहीं करना है। हा, भारी वाला हा। इसमें हरकत की हालत में, यानी ज़बर ज़ेर पेश होगी अगर किसी आयत के लास्ट पर, यानी आयत होती है ना उसके लास्ट पर अगर गोल ता, जिसे हम ताए मरबूता कहते हैं, आ जाए, तो उसे हम भारी वाले हा में बदल देंगे। जैसे सूरह हुमज़ा में है, हुमज़ातिल लुमज़ा, हुमज़ातिल लुमज़ा। यहाँ पे देखें ये गोल ता है, आप कुरान ओपन करके जब देखेंगी तो गोल गोल ता है इस पे, लेकिन इसको हमने क्या कर दिया, इसको हमने लुमज़ा तीन ही पढ़ा है, इसको हमने क्या पढ़ा, लुमज़ा, हाँ में तब्दील कर दिया। कौन से वाले, भारी वाले हा। भारी वाले हा को सही प्रोनाउंस करना है, ये बहुत प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, इसकी ये नहीं अदा होता है सही। यहाँ गोलता को हमने हाँ में बदल दिया। हाँ अगर साकिन हालत में होगा, यानी उस पर कोई जबर जेर पेश नहीं होगी, तो उसको पढ़ते वक्त आपको वाइब्रेशन महसूस होगी। जैसे कि मैंने आपको अभी हाँ जब प्रोनाउंस किया तो मैंने क्या बोला कि आपको बाकायदा वाइब्रेशन महसूस होगी। कब, जब उस पर जबर जेर नहीं होगी। जैसे सूरह फातिहा में है, इहदिन सिरातल मुस्तकीम। एह, अब एह में जो है वो आप जब आप ब्यूटी बोन से अपना हाथ रखेंगी और अदा करेंगी हा, भारी वाला हा, तो आपको वहां से वाइब्रेशन महसूस होगी अपने
थ्रॉट के कौन से वाले हिस्से में, लास्ट वाले हिस्से में। हल्क जो है करीब, सीने से करीब, और मुंह से दूर वाला हिस्सा होता है। तो आपको अंदाजा हो गया कि अल हल्क में जो हा और हमजा, हमजा की अदायगी और हा की अदायगी। अक्सर हल्क जो मैंने अभी हल्क बताया है ना, इसके टोटल थ्री मेन पार्ट्स है ना, मैंने बताया था कि इसके थ्रू थ्री महारिज है। एक अक्सुल हल्क, एक वसतुल हल्क, एक अदनाउल हल्क। तो इसमें से हमने क्या पढ़ा आज? हमजा और हा, ये किससे अदा होगा? अक्सुल हल्क से। अल हल्क जो है वो 6 आवाजें निकलेंगी और उसमें थ्री सब डिवीजन है, और अक्सुल हल्क यानी गले का सबसे नीचे वाला हिस्सा जो सीने से करीब और मुंह से दूर वाला हिस्सा है। ठीक है। और इधर से कौन से दो हरूफ अदा होते हैं? हमजा, हा। हमजा हा की तो मैंने आपको बता दी निशानी। हमजा को कैसे अदा करना है ये मैं आपको बता देती हूँ। अक्सर हरक सीने के करीब है, यानी मैंने भी आपको पहले बहुत डिटेल में इसका बता चुकी। यहाँ आपको एक स्पेस नजर आएगी, उस स्पेस पे आप अपनी उंगली रखेंगे, ये उसकी अदायगी की निशानी है, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। ब्यूटी बोन्स, जैसे ब्यूटी बोन्स जहाँ पे हमारी टच हो रही है ना, उसके दरमियान में आपको अपनी हड्डियों के दरमियान में जो है वो एक थोड़ी सी जगह हारी नजर आती है ना, वहां पे आपने अपना हाथ रखना, उंगलियां रखनी है। तो ये दोनों अल्फाज यानी हमजा और हा अदा होते हैं। हमजा जब भी हरकत यानी जबर जेर पेश की हालत में होगा तो उसकी साउंड क्या आएगी? आ, ई, ऊ की आवाज सुनाई देगी। हमजा की मिसाल जैसे अल मलाइकतु, और जब हमजा साकिन की हालत में यानी उससे कुछ भी नहीं होगा, जबर जेर पेश नहीं होगा, तो उसे झटका देंगे। जैसे युमिनूना, युमिनूना, देखें झटका दिया हमजा के ऊपर, क्योंकि जिस्म साकिन की हालत में है, उस पर जबर जेर नहीं है। लेकिन अल मलाइकतु, यहाँ पे हमजा के नीचे जेर है तो उसको झटका नहीं देंगे। आज के लिए आपका इतना ही काफी है। ये हमने क्या पढ़ा? महारजे मुहक्का, उसका महारज नंबर जो है वो अल हल्क। अल हल्क का फिर हमने जो एक एक अभी महारज पढ़ा है, जिस हलक की जो है वो थ्री हुए हैं ना, उसको पार्ट्स में डिवाइड किया गया, उसको जिसमें से 6 हरूफ अदा होंगे। आज हमने अल हल्क यानी अक्सर हल्क पढ़ा, जिनमें से दो, 6 हरूफ में से दो आज हमने पढ़ लिए, भारी वाला हमजा और भारी वाला हा। नेक्स्ट इंशाल्लाह क्लासेस में हम नेक्स्ट और पढ़ेंगे, जो 4 रह गए हैं। साथ में इस्तिलाहात ज़रूरिया जो कि हम कर रहे हैं, हमारी 35 अल्लाह के फजल से हो गई। नेक्स्ट आज नंबर 36, हरूफ लसविया, वो हरूफ जो लस्सा यानी मसूड़े के करीब से अदा होते हैं। ज़, ज़ाल, सा, ये मसूड़े के करीब से अदा होते हैं। नंबर 37, हरूफ असलिया या सफीरिया, वो हरूफ जो जुबान की नोक से अदा होते हैं। सौद, ज़ा, सीन, वाज़ेह आपको यहाँ पे मिल रही होगी कि ये जुबान की नोक से अदा होते हैं। असलातुन जुबान के आखिरी बारीक किनारे को कहते हैं, इसलिए इन्हें हरूफे असलिया कहते हैं। सफीर सीटी को कहते हैं, चूंकि इन हरूफ में यानी सौद, ज़ा, सीन, इन हरूफ में सीटी की तरह की आवाज़ पाई जाती है, इसलिए इन्हें हरूफे सफीरिया भी कहते हैं। नंबर 38, हरूफ शफविया, वो हरूफ जो होंठों से अदा होते हैं। बा, फा, मीम, वाओ। नंबर 39, हर्फ बहरी, होंठों की तरी से अदा होने वाला हर्फ बा। नंबर 40, हर्फ बर्री, वो पहले बहरी था अब बर्री, होंठों की खुश्की से अदा होने वाला हर्फ मीम। नंबर 41, सिफ्त, हर्फ की वो कैफियत या हालत जो हर्फ को अदा करते वक्त हर्फ के साथ कायम हो।
نمبر 42 صفات لازمہ جو حرف کے لیے ہر وقت ضروری ہوں، جیسے حروف مستعلیہ میں صفت استعالہ، یعنی حروف مستعلیہ میں صفت استعالہ. حرف نمبر 43 صفات عارضہ جو حرف میں کبھی ہو اور کبھی نہ ہو، جیسے را کا کبھی پر اور کبھی باریک ہونا. نمبر 44 حروف متحد المخرج و متحد الصفات وہ حروف جن کا مخرج اور صفات ایک ہوں، جیسے ماددہ میم زبر ما دال زبر دا دال زبر دا ماددہ میں دال. رائٹ یہ آپ کی اصطلاحات ضروریہ ہو گئی آج کی. تو آج کے لیے اتنے کافی ہیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.